what is our number system. In our number system, we will discuss about different types of numbers. First is our natural number. What is our natural numbers? As we had studied in our previous classes, natural numbers are those numbers which are starting from 1 One. and still infinite. That we had infinite numbers of natural numbers. Okay, then second is our whole number. Whole number is starting from 0. Okay, To infinite. the numbers that are starting from 0 till infinite is our whole numbers. Then Whole we had number. about the integers. Integers. What are our integers? All the positive and negative numbers including 0. Okay, all positive numbers and negative numbers, that is +5 and -5. Okay, +4, -4, plus infinite and minus infinite, all these numbers are integers. Okay, including 0. 0 is also a integer, but 0 is a neutral number. It is neither positive nor negative. Negative. Okay, then we will discuss the rational number. What are our rational numbers? The numbers which can be written in the form of p by q, where q is not equals to 0. Okay, what is our rational number? The numbers that can be written in the form of p by q. So I can write the definition of rational number. The numbers that can be written in the form of p by q, where q is not equals to 0. This form of number is known as rational numbers. For example, I can take 1 by 2. 1 by 2 is a rational number. 0 by 2. Okay, 0 by 2 is also a rational number since the q, that is denominator, is not equals to 0. But 8 by 0 is not a rational number. It is an irrational number, or it is not defined. Okay, where the denominator is 0, this type of fractions are not defined. Okay, so what is a rational number? The numbers that can be written in the form of p by q is our rational numbers. After understanding the numbers, now we had to understood what is our number line. What is our number line? Number line is a line representing different numbers on it. Okay, so how can we write the number line? In between of number line we had 0. Okay, in between of number line we had 0. In the left hand side we have negative integers. What we have? Negative integers till infinite. And in the right hand side we will be having positive integers till infinite. Okay, so what is our number line? Number line is a line representing different numbers on it, and in the left hand side we have negative integers or negative numbers, and in the right hand side we had positive integers or positive numbers. Okay, rational number can be also represented on the number line. These are the integers which I represent on the number line, and now I can also represent rational numbers. Okay, similarly rational number is -1 by 2, -3 by 2, -5 by 2. In the left hand side I will represent the negative rational numbers, and in the right hand side I will represent the positive rational numbers. You can take different numbers on the number line. Okay, so after understanding the natural number, whole number, integers, rational number and number line, we will be discussing our examples. Okay, before starting the examples, we will do how can we find rational numbers between any two rational numbers. Okay, so next topic is our rational number between two rational
numbers. We had given different rational numbers. Suppose I told you find a rational number between 0 and 1. If I told you to find a rational number between 0 and 1, how could you find? ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 0 और 1 के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो बीच का रैशनल नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मिड टर्म ऑफ 0 एंड 1. ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 0 प्लस 1 बाय 2, दैट इज आर 1 बाय 2. सो which rational number is between 0 and 1? That is 1 by 2. It is at the middle of 0 and 1. This rational number 1 by 2 is at the middle of 1 by 2. But if I said write 5 numbers between, find 5 rational numbers, any 2 numbers. ओके, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर मैं आपको बोलूं कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू टेक द n इज इक्वल्स टू 5. व्हाट इज योर n? हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 5 नंबर्स. तो हम 5 को क्या लेट करेंगे? n. ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट n प्लस 1, दैट इज 5 प्लस 1 इज 6. ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच में एनी 2 नंबर, लेट मेरा कोई नंबर है 2 and 3. मुझे 2 और 3 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है. तो मैं कैसे करूंगी? ठीक है, 2 इज माई A एंड 3 इज माई B. तो जो मेरे पास A है और B है, उसके बीच में मुझे कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 5 नंबर्स फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम n लेट करेंगे. n क्या होगा? जितने नंबर्स हमें फाइंड करने हैं. ओके, देन वी विल फाइंड n प्लस 1, दैट इज 5 प्लस 1 इज 6. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट नंबर? दैट इज a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n प्लस 1 से. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हाट इज आवर n? a, दैट इज 2 and n plus 1 is 6. Okay, so what we had get 12 by 6. Similarly, done the same thing with b into n plus 1 upon n plus 1. So जब हम b के साथ n plus 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? What is our b? That is 3. 3 into 6 upon 6, that is 18 by 6. Now 12 by 6 और 18 by 6 के बीच के 5 नंबर्स क्या होंगे? 13 by 6, 14 by 6, 15 by 6, 16 by 6 and last is 17 by 6. It is our first number, second number, third number, fourth number and fifth number. So we had two types of method in this for finding any rational number between two rational numbers. Okay, you can find 10 rational numbers, 20 rational numbers or such many as question said to you. So कैसे करेंगे? पहला तो फर्स्ट मेथड हमारा है कि अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर गिवन है, उसके बीच का अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट a और b को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. और अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, 6 रैशनल नंबर निकालो, तो कैसे निकालोगे? जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं उन्हें क्या करोगे? n लेट करोगे. n प्लस 1 को क्या करोगे? जो हमारे पास a और b नंबर्स गिवन है उनसे क्या करोगे? मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे. तो यहाँ पे हमारा a क्या गिवन था? दैट इज 2 एंड b क्या गिवन था हमें? दैट इज 3. तो 2 और 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 6 by 6. सिंस n प्लस 1 इज 6 by 6. ओके, तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास एक नई फ्रैक्शन क्या आ गई? 12 by 6. मैं 2 को 12 by 6 लिख सकती हूँ और मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ? 18 by 6. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? 12 by 6 और 18 by 6 के 5 बिटवीन के 5 नंबर्स, that is 13 by 6, 14 by 6, 15 by 6, 16 by 6 and 17 by 6. These are our 5 rational numbers between these two rational numbers, that is our 2 and
3, 2 और 3 के बीच के हमने 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए. तो दिस मेथड इज गिवन इन योर बुक एज एग्जाम. ठीक है, यहाँ पे x और y लेट करके किया है, हमने एग्जाम्पल की तरह से सॉल्व किया है, क्योंकि जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हमें बेटर समझ में आता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, लेट x एंड y आर द टू रैशनल नंबर्स. आपको अगर दो रैशनल नंबर x और y दे रखे हैं सच दैट x इज लेस देन y, x क्या है, y से छोटा है, तो उसमें क्या होगा, अगर उसके बीच का हमें कोई बिटवीन का हमें कोई रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बाई टू. दैट इज आवर फर्स्ट मेथड. And in second method, what we had done, if AB are the two rational numbers such that A is less than B, then n rational numbers lying between AB. AB के बीच में कितने rational number निकालना है हमें, n, that is 5, 6, anything. So first is our A and last number is our B. ठीक है, इसके बीच के अगर हमें n numbers निकालने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n+1 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके. ठीक है, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जब हम a को n+1 से और b को भी n+1 से, तो हमारे भी पास जितने भी नंबर हमें अगर 5 चाहिए तो 5 आ जाएंगे. अगर मैं यहाँ पे 10 लूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यूज डिफर करेगी और उस वजह से क्या आएंगे, यहाँ पे जितने हमें नंबर्स चाहिए उतने ही आएंगे. ओके, दिस फॉर्मूला कैन बी टिपिकल फॉर यू, बट यू कैन डू these questions with this formula also. Okay, so what do you have to done, a into n+1 upon n+1 and b into n+1 upon n+1. So by this method you can find the rational numbers between any two rational numbers. Okay, let us see the examples. First example we had, are the following statements are true and false, give the reason for your आंसर्स. ओके, हमें ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन भी जस्टिफाई करना है. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. क्या हमारे सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं? नो. ठीक है, 0 हमारा होल नंबर है बट 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है. सो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सेकेंड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन व्हाट इज आवर सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. Is every integer is a rational number? Yes, it can be true. Okay, क्योंकि सारे integers को हम किस में लिख सकते हैं, all integers can be written in the form of p by q. all integers can be written in the, जैसे मेरे पास -2 है तो -2/1 लिख सकती हूँ मैं -2 को, तो ये किसकी फॉर्म में है, p by q की फॉर्म में है. जैसे मेरे पास 0 भी इंटीजर है, 0 को मैं 0/1 लिखूं, ठीक है, 0/2 लिखूं, ठीक है, तो सारी चीजों को मैं किस में लिख सकती हूँ, p by q की फॉर्म में, जहां पे q मेरे पास 0 नहीं है. सो 0 हमारे पास इंटीजर है, वो भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है. -2 हमारे पास इंटीजर है, उसे भी हम किस में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. देन आवर थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर. सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. तो क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं क्या? थर्ड देखो, जैसे मैं लेती हूँ 8/9. 8/9 इज द रैशनल नंबर बट इट कांट बी एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है क्योंकि हमारे पास जो भी फ्रैक्शन में नंबर होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते. ठीक है, हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, प्रॉपर, ठीक है, नंबर्स होते हैं. दे आर नॉट द फ्रैक्शंस. ओके, सो ऑल रैशनल नंबर्स कांट बी इंटीजर्स बट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2. 1/3 और 1/2 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, सिर्फ एक. ठीक है, तो हमारे पास बिटवीन वाला फॉर्मूला है. बिटवीन वाले में फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, x plus y/2. So here in the example number 2, what is our x? What is our x? That is 1/3. And what is our y? That is 1/2. First of all, check is x is less than y. क्या x y से छोटा है? Yes, it is true. X is
less than y. Okay, then we will put the formula. What is our formula for finding a rational number between two rational number? That is x plus y by 2. So here 1 by 3 plus 1 by 2 by 2. So what we had get 1 by 3 plus 1 by 2. What is our LCM? That is 6. So I can write it as 2 plus 3 upon 2. Okay, that is 5 by 6 upon 2. It can be written as 5 by 6, 2 by 1. So I can write it as 5 by 6 multiplied by 1 by 2. Okay, so what is this? 5 by 12. Got it? What we had get 5 by 12 is the rational number between 1 and 2. Between 1 by 3 and 1 by 2. Okay, in this way you can find the rational number between any two numbers. Okay, clear till here? We will continue with the example number 3rd. Find 5 rational numbers between 1 and 2. 1 और 2 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? एग्जाम्पल 3 हमें क्या बोलता है? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2. 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स. तो हमारा n कितना हो गया? 5. तो यहाँ से n प्लस 1 कितना होगा? 6. हमारा a क्या है? 1 है और b क्या है? हमारा 2 है. ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? a मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज आर n प्लस 1? दैट इज 6 अपॉन 6. So what we get? 6 by 6. Similarly, we do b into n plus 1 upon n plus 1. So what is our b? That is 2 multiplied by n plus 1, that is 6 upon 6. What we had get? 12 by 6. Okay. So what is our a? That is 6 by 6. And what is our b? 12 by 6. इसके बीच के कितने 5 numbers हमें find out करने हैं. तो 6 by 6 के बाद हम कैसे लिखेंगे काउंटिंग? अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, दैट इज 7 by 6, देन 8 by 6, then 9 by 6, then 10 by 6, then 11 by 6. Okay, so here we get the 5 numbers, that is 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 and 11 by 6. These are the 5 rational numbers between 1 and 2. Okay, have you got it? In your textbook, there are 2 methods. First method is finding the midterm. Okay, पहले ठीक है. और second method क्या है? By direct applying this method. तो हमने first method देख लिया. Now we will go to the second method. Second method में हम क्या करते हैं? हमारे पास x क्या है? 1 है. y क्या है? 2 है. x इज लेस देन y. हम कंडीशन चेक करेंगे और अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x प्लस वाई बाय 2. तो इसका मिड टर्म हमें क्या मिलेगी? 1 प्लस 2 बाई 2, दैट इज 3 बाई 2. सो 1 और 2 के बीच में हमें क्या मिल गया? 3 बाई 2. एक नंबर मिल गया. अब हम क्या करेंगे? 1 और 3 बाई 2 के बीच में एक मिड टर्म. ठीक है, वापस मिड टर्म वाला थ्योरम लगाएंगे. ठीक है, वापस मिड टर्म वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? इन दोनों के बीच का एक नंबर. और इधर से राइट हैंड साइड में भी एक मिड टर्म आ जाएगी. यहाँ से हमारे पास 3 मिड टर्म्स हो जाएगी. उसके बाद हम क्या करेंगे? जो नेक्स्ट मिड टर्म्स है उनके बीच के और नंबर्स निकालेंगे. सो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रैशनल नंबर हमें मिल गया. अब हमें 4 रैशनल नंबर और फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो अब हम 1, 3 बाई 2 एंड 2 इसको a मानेंगे. इसको क्या लेट करेंगे? b. ठीक है, सो व्हाट इज आर a? दैट इज 1 and what is our b? That is 3 by 2. a is less than b. Okay, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a plus b by
2. So what is our a plus b? 1 plus 3 by 2 divided by 2. So what we get? 2 plus 3 by 2 by 2. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 5 by 4. From here we get again a term 5 by 4. तो अब मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 5 by 4, then 3 by 2 and then 2, क्योंकि हमारे पास 1 और 3 by 2 के बीच की मिड टर्म क्या आ गई? दैट इज 5 by 4. Now we will take a as 3 by 2 and b as 2. ठीक है, तो मैं a को अगर 3 by 2 लेती हूँ, b को मैं क्या लेती हूँ? 2. ठीक है, तो अगेन हम क्या देखेंगे? a इज लेस देन b. फिर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a प्लस b बाई 2. तो यहाँ पे हमारे पास a कितना है? 3 by 2, b is 2 upon 2. So what we get? 3 plus 4 by 2 by 2. That is 7 by 4. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला? 1 by 4, 5 by 4, 3 by 2, 7 by 4 एंड देन 2. तो यहाँ पे हमें 3 नंबर मिल गए. अब वापस आप क्या करोगे? इनके बीच में मिड थ्योरम लगाओगे, इसके बीच में मिड थ्योरम लगाओगे, तो यहाँ से 2 नंबर और मिल जाएंगे. इसी प्रोसेस को आप मैं बाहर बार करते जाओगे तो आपके पास नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे. ओके, तो इस तरीके से निकालते तो हमारे लॉन्ग पड़ता है. ठीक है, तो इस मेथड से जिनको समझ में आया वो इस मेथड से निकाल सकते हैं, और जिन्हें ये मेथड फर्स्ट समझ में आया, यू कैन अप्लाई मेथड फर्स्ट ऑल्सो. ओके, both method can be applied to solve this question. Next is our example number 4. Find 15 rational numbers between 1.1 and 1.2. सोचो अगर हमें 15 नंबर्स निकालने हैं, मैं मिड टर्म थ्योरम से लगाऊं, तो मिड टर्म थ्योरम मेरे को 15 टाइम्स क्या करनी पड़ेगी? रिपीट करनी पड़ेगी. इस केस में क्या हो जाता है? हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो हम किस मेथड को यूज लेंगे? सेकंड मेथड, जो क्या था हमारा? n+1 वाला. ठीक है, n क्या है? यहाँ पे 15 है. n+1 मेरे पास कितना हो जाएगा? 16. फर्स्ट नंबर को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगी, सेकंड नंबर को अगेन मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगी, एंड देन आई कैन फाइंड द 16 नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स. ओके, जैसे लास्ट में हमने क्या फाइंड किया था? 5 by 6 by 6, 7 by 6, 8 by 6. ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो. यहाँ पे वापस 1 लिख सकते हो. ठीक है, 8 by 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 by 3 लिख सकती हूँ. ठीक है, इसी तरीके से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4. In example number 4, we have to find 15 rational numbers. So our n is 15. What is our n+1? That is 15 plus 1, that is 16. Okay, what is our a? 1.1 and b is 1.2. तो हमें क्या करना है? पहले a के साथ n+1 को मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे. ओके, तो हमारा a क्या है? 1.1 है. ठीक है, मैं 1.1 को ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 11 by 10. लिख सकती हूँ 11 by 10, एंड अगेन 1.2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 12 by 10. ओके, तो यहाँ पे हमारा a क्या हो जाता है? 11 by 10 multiplied by 16 and divided by 16. So what we get? 11 into 16 is 176 upon 16 tens are, that is 160. b के लिए सिमिलर चीज करेंगे तो क्या होगा? What is our b? That is 12 upon 10 multiplied by 16 divided by 16. Again we will get 160, and in numerator 12 into 16 is 192. So from 176 by 160 you have to find 15 numbers 192 by 160. तो जब आप 177 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 191 तक जाएंगे, तो आपके पास इन बिटवीन टोटल नंबर्स कितने होंगे? 15 होंगे. कितने होंगे? 15. ओके, तो in this way you can find 15 rational numbers between
द गिवन टू नंबर्स। आई होप, ठीक है। 177 बाई 160 होगा फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड क्या होगा 178 बाई 160, then 179 upon 160 until continue 191 by 160। ओके, तो टोटल यहां से यहां तक काउंटिंग जाओगे तो कितने हो जाएंगे 15 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे इन दो रैशनल नंबर्स, दैट इज 1.1 एंड 1.2 के बीच के। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 इज ऑल्सो सेम। इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन, 100 है तो हमारा n कितना हो गया, n इज आर 100। ठीक है, बट देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टू डिफरेंट फ्रैक्शंस गिवन है। ओके, यहाँ पे जब हमें फ्रैक्शंस गिवन था सो हमें क्या करना है, इसके बीच n कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अभी तक हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, n+1 से करते थे। सीन्स हमें क्या करना होता था, डिनोमिनेटर को सेम करना होता था। हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को सेम करते थे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1/3 एंड 2/5। तो इसका अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, a को, दैट इज -3, -1/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, दैट इज द एलसीएम ऑफ बोथ दीज नंबर्स। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 और 5 का, दैट इज 15 आएगा। ठीक है, तो जब मैं 15 को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 100 नंबर्स निकालना है, तो दैट विल बी ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 100। 3 और 5 के मल्टीपल के साथ साथ वो किसका भी मल्टीपल होना चाहिए 100। तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 15 न्यूमरेटर एंड 15 डिनोमिनेटर। so what I get -50 upon 150। ओके, एंड जब मैं b को भी 50 से मल्टीप्लाई करती हूँ, दैट इज 2/50 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम आता है, नहीं आता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास फ्रैक्शन अलग गिवन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मुझे क्या लाना है, इसका डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो मैंने यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया 150 से, क्योंकि ये 100 का मल्टीपल होना चाहिए हमारे पास। तो इट कैन बी 15 3 जा 150 अपॉन 3 2 जा दैट इज 60। अब काउंट करो 60 और 50 के बीच में आपके पास कितने नंबर्स हो जाएंगे, 100 numbers। you can find it out between -50 by 150 and 60 by 150। ओके, तो कैसे होंगे, -49 by 150, -48 by 150 एंड till 59 by 150। you can get 100 numbers between -50 by 150 to 60 by 150। Similarly, now we will discuss exercise 1.1। first is 0 a rational number? क्या 0 rational number है? Can you write it in the form of p by q? क्या आप इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are the integers। जहाँ p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q is not equals to 0 और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, क्या 0 हमारा होता है रैशनल नंबर, होता है ना, इसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट में आपको इसी को डिस्कस करना है। इज 0 अ रैशनल नंबर? तो 0 को हम रैशनल नंबर कैसे बताएंगे, 0 है हमारे पास, 0 कैन बी रिटर्न एज, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकती हूँ मैं, 0/2 लिख सकती हूँ, 0/3, इट कैन बी 0/4 और एनी नंबर। सो 0 इज ऑल्सो इंटीजर, 1 2 3 जो मैं इसके डिनोमिनेटर में ले रही हूँ वो भी हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। तो वी कैन राइट इट एज के 0/1
or 0 by 2 is a rational number. Okay, so I can write it as 0, 0 by 1, 0 by 2 are the rational number since q is not equals to 0. इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो yes, 0 is a rational number. We can write 0 as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 and all. Okay, यहाँ तक की बात समझ में आई. इसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिप्रेजेंट 7 by 2, -3 by 2 and -12 by 5 ऑन अ नंबर लाइन. आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. कैसे करोगे आप? हमने एक नंबर लाइन बनाई. इस तरफ हमारे क्या होंगे? मिड में क्या होगा? 0 होगा. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स होंगे. दैट इज 1.2, 2.2, 3.2 एंड ऑल. माइनस के होंगे, सारे किसके होंगे? नेगेटिव के. और राइट हैंड साइड में हम कैसे लिख सकते हैं? 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 and then 7.2. So here in this way we can represent 7 by 2, 7.2 on a number line. इस तरीके से हम 7.2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. उसी तरीके से आप -3 by 2 को करेंगे एंड -12 by 5 को आपको क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. दैट इज योर होमवर्क. ओके, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन. ठीक है, इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकालना है. तो कैसे निकालोगे? ये हमारा x है, ये हमारा y है. ठीक है, सिंस x इज लेस देन y, so we will apply the theorem x plus y by 2. So x plus y by 2 की जब थ्योरम लगाओगे इसका मिड टर्म निकल जाएगा. सिमिलरली 1.6, 1.5 और 1.6 के बीच का क्या निकलेगा? 1.55. ठीक है, तो इसको पूरे मेथड से आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड and question number third is your homework. Then we will continue from the next question in our next session. Okay.